Hello, children. Hello, and welcome to this online class. As you all know, that since 2 days we have been studying this lesson, this wonderful lesson, "The Enemy" by Pearl S. Buck. And before beginning the lesson today, dear friends, let us discuss the time setting in which this lesson is set. You see, Second World War was going on, and Dr. Sadao was a member of Japanese army. He worked there as the surgeon or the doctor, but he has not been sent with the Japanese army for two reasons that we have discussed yesterday. The two reasons are: the first reason is that the Japanese army general, he was too much old, and he had to undergo an operation, and that operation would be done by uh, Dr. Sadao. That is one reason, and second reason is that he is working on a discovery to make the wounds clean and so on. So that is the second reason, and for these two reasons, Dr. Sadao had been left there only in the city, and he didn't move with the army to the front. So the setting of this story is the between 1939 to 1945. In that period particularly, you see, Japan uh, is on one side, was on one side, you see, and America is on the Britain side. So naturally, these are two opposite groups. So when an American soldier was ashore, each one claimed him as their enemy. But see the goodness of, see the good heartedness, see the well kindness of Dr. Sadao and his wife Hannah. They very well knew that what would be the consequences if they shelter an American, and that too an American army man. Okay, we we have completed our two parts, but since we do not know, till we do not know the name of that soldier because he is unconscious, but out of only courtesy, not just courtesy, out of universal love, you see, out of universal brotherhood, they decided to save the American soldier, the wounded soldier, you see, and for this they very well knew that it can cost their lives also. Their life can be destroyed, their life could be destroyed, their children's life could be endangered. So in this uh, aspect, you see, in this perspective, this story is very much important. uh, we we can learn something from the point of view of Dr. Sadao and his wife, you see. So we will hit the lesson, we will begin the lesson from the part we have left yesterday, dear friends, and we will try to finish much part of this, but I know that would be
very much impossible, as this lesson is very wonderful. So yes, we have left here yesterday. So in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. देखिए क्या हुआ है कि उसके नौकरों ने मना कर दिया है. किस चीज से मना कर दिया है? उसके नौकरों ने मना कर दिया है कि वो, यूमी ने मना कर दिया है कि वो उसको साफ नहीं करेगी, क्योंकि उसने आज तक किसी अमेरिकन या किसी वाइट मैन को साफ नहीं किया. समझ रहे ना? ऑब्वियसली कोई नहीं करता है, कोई वाइट मैन को, कोई ब्लैक मैन को ऐसे कोई साफ जो है नहीं करता है. बट सी दी, यू सी दी stubbornness of Yumi, and naturally she is afraid of her own life. Now in the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his bare breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. उसने क्या किया? गर्म पानी के अंदर वो कपड़ा डुबोया जो यूमी ने लाया था भरकर. स्टीमिंग हॉट वाटर, समझते ना? स्टीमिंग जिससे भाप निकल रही है. और उसके पूरे ऊपर का जो कपड़ा था, ऊपर का जो शर्ट जो उसका था, जो पहना था, वो उसने पूरा निकाला और पूरे चेहरे को उसको उस सॉफ्ट हैंकी से उसने क्या किया? साफ कर दिया. और ऐसा करते समय उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि वो कितनी सुपीरियर है. उसके अंडर 3-3 नौकर जो है काम करते हैं. नौकरों ने मना कर दिया, इसलिए ऐसा नहीं कि उसने भी वो काम नहीं किया. उसको पता था ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर सदाव जो है ऑपरेशन करने वाले थे अभी. एंड द मैन स्किन दो रफ विथ एक्सपोजर. देखिए उस व्यक्ति की जो स्किन थी, वो जो लड़का था जो जख्मी था, उसकी जो स्किन थी, यहाँ पर राइटर उसकी तारीफ कर रही है, was of a thick fine texture and must have been very blonde when he was a child. ये उसकी त्वचा जो है बड़ी नाजुक रही होगी जब ये बच्चा रहा होगा. Imagine this is the feeling of Hannah, है ना? This is the motherly feeling, like a child. You see, she is treating that strange enemy. You see, enemy, that is a white man, an American. Then, while she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. उसने ये सारे विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं, है ना? स्मेल भी आ रहा होगा उसके शरीर से, क्योंकि गोली लगी उसके अंदर, ब्लड बह रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन फिर भी जो है उसने उसको इतना अच्छे से साफ कर दिया. उसकी पूरी ऊपर की जो बॉडी थी, अपर पार्ट जो था उसके बॉडी का, है ना, स्टमक से लेके ऊपर का जो पूरा पार्ट था उसका, उसके चेहरे से लेके बाल हो गए, पूरे पार्ट को जो है एकदम क्वाइट क्लीन कर दिया. एंड नाउ ही इज़ रेडी फॉर द ऑपरेशन. बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर. लेकिन उसको पलटाने की हिम्मत उसके अंदर से नहीं आई. पलटाया नहीं उसने. क्यों? वेयर वॉज सदाव. अब वो सोच रही है, क्योंकि पीछे क्या है उसके, यहाँ पे पीछे, समझते ना, किडनी से थोड़ा पीछे जो है, लोअर पार्ट से थोड़ा ऊपर क्या है, उसको गोली लगी है. उस पार्ट को छूने की उसकी हिम्मत नहीं हुई. और आपको पता है उसको मॉस से उसने क्या कर दिया था डॉक्टर सदाव ने, वो खून, तो उसको ये डर भी लग रहा है कि अगर खून बाहर निकल आएगा तो क्या होगा, तो टर्न करने की उसको हिम्मत नहीं हुई. अब सोचते हैं वेयर वॉज सदाव, वेयर वॉज सदाव. नाउ हर एंगर वॉज इबिंग. इब एंड फ्लो, वहां से शब्द लिया गया है. इब एंड फ्लो, समंदर के लहरों का चढ़ना, समंदर के लहरों का कम होना. अब उसका जो एंगर है धीरे 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 जो है क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है. इबिंग. एंड सी वॉज एंक्शियस अगेन एंड सी रोज. राइज का पास्ट टेंस रोज. राइज यानी खड़े होना, उठ के. तो वो एकदम से एंक्शियस हो गई, एकदम से वो परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई, और वो उठ के खड़ी हो गई. कहाँ गया सदाव?
वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, और उसी टॉवेल से जो है वो क्या है, अपने अनजाने में क्या करे, उसी टॉवेल से वो हाथ अपने साफ करने लगी. देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम. बोलती है कि अभी थोड़ी देर जो है इस आदमी को थोड़ा सा चिल्ड होने दो, चिल्ड समझते ना, ठंडा होने दो, ठीक है. उसके बाद जो है वो उसके ऊपर जब जैसे वो ठंडा हो जाएगा उसके ऊपर वो चादर जो है, जो तकिया, वो रजाई जो उसने लाई थी ना, क्विल्ट हमने पढ़ा ना शब्द क्विल्ट, तो वो क्विल्ट जो है उसके ऊपर ओढ़ देगी. फिर क्या हुआ, सदाव सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने आवाज़ लगाया सदाव. ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन सी कॉल्ड, बस वो आने आ ही रहा था जब उसने आवाज़ लगाई. हिज हैंड्स हैड बीन ऑन द डोर, उसके हाथ जो है दरवाजे पर थे. एंड नाउ ही ओपनड इट, अब उसने दरवाज़ा खोला. शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट. सी, उसने देखा, हैना ने, कि सैदाव ने डॉक्टर वाले जो सर्जरी के समय जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े पहने हुए थे, एप्रॉन वगैरह, और उसके हाथ में क्या था, वो इमरजेंसी किट थी, इमरजेंसी बैग थी जिससे वो ऑपरेट करने वाला है. तो जोर से चिल्ला के बोली, सो यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट नाउ. यस, तो तुमने डिसाइड कर लिया, तुम इसको ऑपरेट करोगे. यस, ही सेड शॉर्टली. उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके बात के ऊपर, उसने कहा बिल्कुल, यस. शॉर्टली का मतलब समझते हैं ना, हाँ हाँ बोल देना, निकल जाना. ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, अब उससे आंखें नहीं मिला पा रहा है वो, लेकिन क्योंकि उससे उसने कुछ अलग बात एग्री की थी, है ना. अब उससे आंखें नहीं मिला पा रहा है, तो उसे उसके तरफ अपनी बैक कर ली, समझते हैं ना, पीठ कर ली. एंड अनफोल्डेड स्टेरिलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा alcove and put his instruments out upon it. ओके, और उसने जो है एक स्टरीलाइज टॉवेल लिया, स्टरीलाइज समझते हैं ना, साफ सुथरा, सैनिटाइज्ड, वो नीचे रखा फ्लोर के ऊपर, ठीक है. एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, और सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके ऊपर उसने, बोलते हैं कि सजा दिए, ठीक. फेच टॉवेल्स ही सेड, उसने कहा कि जल्दी जल्दी टॉवेल लाओ, क्योंकि खून बहने वाला है ना, अभी खून बहेगा ना. पहले जैसे वो मॉस को निकालेगा अभी ऑपरेट करने के लिए, तो खून बहेगा, गोली निकालना है बाहर. अब देखिए क्या होता है. सी वेंट ओबीडियंटली, अब हैना के पास कोई चारा नहीं है, वो वैसा ही करने लगी जैसा सैदाव ने उसको कहा. वो टॉवेल लाने लगी, एक नर्स का काम एक्चुअली वो करने लगी. बट हाउ एंशियस नाउ टू द लाइनेन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवेल्स. और कितना एंशियस वो थी जब वो उस लाइनेन शेल्फ्स के पास गई. लाइनेन शेल्फ्स का मतलब यहाँ पे है जहाँ पर वो कपड़े वपड़े सब रखे थे, वहाँ उस शेल्फ के पास गई, और वहाँ से जब वो टॉवेल निकाल रही थी तो सारे विचार उसके दिमाग में आ रहे होंगे, आप समझ रहे हैं ना. और इस वजह से वो क्या हो रही है, एकदम से एंशियस हो रही है. एंशियस का मतलब यहाँ पे फिर से वही परेशान होना, डिस्टर्ब होना. ओके, चिंता की लकीर उसके ऊपर छा गई. वो कहती है that there ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. वो सोच रही है कि ये टॉवेल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे टॉवेल्स बाहर कुछ पुराने मैट्स के पीसेस पड़े हैं, ठीक है ना, उसको लेकर मैं आती हूँ ताकि ब्लड जब बहेगा तो फर्श खराब नहीं होगा. She went out to the back veranda where the gardener kept the strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. तो वो दौड़ते हुए बाहर गई. बाहर गार्डनर ने जो है कुछ वो मैट्स के टुकड़े होते हैं ना पुराने, हमारे घर में जो मैट्स होती है उसके टुकड़े जो है बाहर रखे थे उसने.
वो कुछ प्लांट्स को जो है लगाने के लिए उसने वहाँ पर रखे थे। वो तुरंत बाहर गई और एक हैंडफुल, मतलब समझते हैं ना, मुट्ठी भर वो टुकड़े जो है वहाँ से उठा के वो अंदर लेकर आ गई। बट वेन सी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जैसी वो वापस आई रूम में, सी सॉ दिस वॉज यूजलेस। उसका ये जो काम था, कौन सा, कि फर्श खराब ना हो इसलिए जो है बाहर के रैग्स वो ला ले, बाहर के टॉवेल्स ला ले, तो वो यूजलेस हुआ। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। इसका कोई फायदा नहीं हुआ उसने जो पुराने मैट्स लाए, पुराने मैट्स के टुकड़े लाए, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड फ्लो हो चुका था, ब्लड बह चुका था, रक्त बह चुका था, और उसके अंडर की जो मैट थी जिसके ऊपर उसको रखा गया था, उस व्यक्ति को, उस वुंडेड सोल्जर को, वो पूरी की पूरी रुइन हो गई थी, पूरी की पूरी वो सोक्ड हो गई थी। किससे? रक्त से, मीन्स ब्लड से। ओ द मैट, सी क्राइड। अब महिला है, आपको पता है ना, महिलाओं की चिंता जो है घर के कपड़े, पुराने कपड़े, बर्तन, इन सब में होती है। तो सी इज प्लेइंग ऑल्सो हियर द रोल ऑफ ए परफेक्ट हाउस वाइफ। यू सी, डॉक्टर की वाइफ है, एक बड़े कार्य को वहाँ पे अंजाम देना चल रहा है, बट सी इज, यू सी, एक अलग रोल में हमको है ना नज़र यहाँ पर आ रही है, एक अलग साइड उसके पर्सनैलिटी का। ओ द मैट, सी क्राइड। सदाव रिप्लाइड यस इट इज़ रूइन। सदाव ने रिप्लाई दिया, अरे अब छोड़ो, ये रूइन हो चुका है। रूइन मतलब ये बर्बाद हो चुका है। एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे उसको कोई केयर नहीं है। अब उसका पूरा फोकस कहाँ है? टू सेव द लाइफ ऑफ दैट वुंडेड स्ट्रिंग मैन। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। उसने उसको आज्ञा दी, समझते हैं ना, ऑर्डर दिया कि चलो वो छोड़ो, वो मैट बर्बाद हो गई, उसको छोड़ो, चलो हेल्प करो मुझे उसको टर्न करने में। टर्न करना पड़ेगा ना उसको, पीठ के बल, सॉरी पेट के बल उसको लिटाना पड़ेगा, तब जाके उसका ऑपरेशन होगा। सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड। उसने वैसा ही किया जैसा, क्योंकि समय ऐसा है। सदाव जो है एक बहुत ही अद्भुत कार्य को अंजाम देने वाला है। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और सदाव खुद, डॉक्टर सदाव खुद जो है उस व्यक्ति के सामने का तो साफ उसने कर दिया था पूरा, है ना, पेट से लेके ऊपर तक। अब उसकी पीठ बाकी थी जहां पर वो जख्म था, समझ रहे ना। एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड। उसने कहा कि यूमी ने मना कर दिया इसको वॉश करने के लिए। फिर सदाव ने पूछा, डिड यू वॉश हिम देन? नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स। स्विफ्ट यानी तेज, कंसाइज का मतलब है यहाँ पे प्रॉपर, मोमेंट्स यानी उसका जो कार्य चल रहा है, एक डॉक्टर का कार्य, ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन, ये तैयारी जो उसकी चल रही है वो करता जा रहा है, और बिल्कुल नहीं। तो जो जैसे ही उसने कहा कि बस जवाब देने के लिए उसने कहा, तो तुमने तो साफ किया ना, यस सी सेड। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर। उसने यस कहा, नो कहा, ऐसा लग रहा था कि सदाव का उसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन वेन ही वॉज एट वर्क। लेकिन उसकी ये जो आदत थी, ये पर्टिकुलर उसकी जो आदत थी, अपने काम में खो जाना और दूसरे किसी की तरफ ध्यान नहीं देना, इससे वो एकदम वाकिफ थी। शी वॉज यूज्ड टू, Hannah was used to of his behavior, of his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. हैना यहाँ पे बोल रही है कि डॉक्टर सदाव जो है, सदाव को कोई फर्क नहीं पड़ता। सी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट इफ इट मैटर्ड टू हिम
What was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently? जितना excellently वो ये सर्जरी का कार्य वो करता है, उसको कोई भी फर्क पड़ता है कि ये बॉडी किसकी है, उसको सिर्फ इतना समझ में आता है डॉक्टर सदाव को कि एक वुंडेड बॉडी है, ये महिला की है, ये पुरुष की है, या ये किसी दुश्मन की है, किसी दोस्त की है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसका अपब्रिंगिंग जो है इतना बेहतरीन तरीके से हुआ है, इससे हमको पता चलता है। आगे सदाव बोलता है, यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड। एनेस्थेसिया समझते हैं ना, एनेस्थेटिक शरीर को सुन्न कर देना, ठीक है ना। तो आजकल तो आप देखिए इंजेक्शन लगता है, पुराने ज़माने में क्या होता था, नाक में जो है ऐसे वो रुई जो है वो दवाई, एनेस्थेटिक की जो दवाई होती है उसको नाक में लगाते थे और जो पेशेंट के शरीर को सुन्न करते थे ताकि उसको पता नहीं चले कि उसके बॉडी के साथ क्या हो रहा है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड। उसने हैना से कहा कि तुमको इसको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा। वो कहती है, आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, मीन्स अरे मैंने तो कभी किसी को एनेस्थेसिया नहीं दिया, आप मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा करने के लिए। बोलता है, नहीं किया तो क्या हो गया, इट इज इजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। उसने कहा, बड़े इम्पेशेंटली उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बहुत ईजी है वो, तुम चिंता मत करो। ही वॉज टॉकिंग आउट ऑफ द पैकिंग नाउ, सॉरी, ही वॉज taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. पैकिंग का मतलब होता है जो उसकी जो जख्म जो पैक की थी ना मॉस से, अब उसकी जो मॉस है साफ कर दिया उसने पीठ पूरी, अब उस मॉस को जो है थोड़ा थोड़ा धीरे 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 वो क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, समझते ना, पैकिंग पैकिंग। एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, और अब क्या होगा, होने लगा, वो जो ब्लड है बड़ी तेजी से बहने लगा। ही पियर्ड इन टू द विंड, पियर यानी झांकना, पियर का मतलब होता है झांकना। ही पियर्ड इन टू द विंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टन्ड ऑन हिज फोरहेड। समझते हैं आप, सर्जन है वो, उसके सिर के ऊपर उसने क्या पहना है, एक टॉर्च पहना है, ऐसे पट्टी लगाते हैं सिर के ऊपर, उससे जो है वो क्या देखने लगा। देखो घड़ी सुधारने वाले को आपने देखा होगा कभी, डॉक्टर को तो शायद आपने इस तरीके से देखा होगा, आजकल तो ऐसे टॉर्च लगाते हैं ना मुंह वगैरह में, तो उस जमाने में इस तरीके की प्रैक्टिस होती होगी, आज भी होती होगी, सर्जन करते होंगे। तो उसके फोरहेड के ऊपर जो टॉर्च लगा था उससे वो उस वुंड में झांक रहा है कि कहाँ तक जो है गहरा है। द बुलेट इज स्टिल देयर, उसने देखा कि बुलेट अभी भी अंदर ही थी, दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम, बुलेट अभी भी अंदर ही है। ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, बड़े कूल दिमाग से उसने कहा, हाँ बुलेट अभी भी अंदर ही है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो रॉक की वुंड इसको लगी है, समझते हैं ना, रॉकी वो सॉरी, पत्थरों वाले नुकीले पत्थर उसको चुभे है ना आते आते, तो उसके एक पत्थर क्या है, ओ माय गॉड, उसके जख्म के अंदर भी चला गया, समझ रहे ना आप। तो उसने कहा बुलेट तो अंदर है, लेकिन ये जो रॉक का वुंड इसको लगा है, रॉक का जो जख्म है इसको, नुकीले रॉक का, वो न जाने कितना गहरा है, उसको भरने के लिए समय लगेगा। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये जख्म ज़्यादा अंदर नहीं है, मतलब अंदर देखिए पूरी बॉडी है ना उसकी, समझ रहे ना, पूरे स्टमक का पार्ट है, किडनीज है, लंग्स है, अलग अलग है ना, होते होते हार्ट तक वो आ जाएगा, तो न जाने कितनी गहरी है। तो उसने कहा कि बुलेट को निकालना जरूरी है, अगर ये जख्म ज़्यादा गहरी नहीं है तो आई कैन गेट द बुलेट आउट, बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रहा है वो सुपरफिशियल नहीं है। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी ऊपरी नहीं है, वो अंदर से हो रहा है। अंदर से हो रहा है मतलब शायद पेट से हो रहा है, शायद किडनी से हो रहा है, शायद लीवर से हो रहा है, न जाने कहाँ से हो रहा है, वो तो वो बोल रहा है
ब्लीडिंग जो है सुपरफिशियल नहीं है. ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड. बेचारा, इसका बहुत खून बह गया है. एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड. हैना एकदम से रुक गई. ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. डोंट फेंट, he said sharply. He did not put down his exploring instrument. If I stop now, the man will surely die. उसने हैना से कहा, वो जो है फेंट होने की कंडीशन में आ गया है ना, उसका ब्लड देख के, उसका जख्म देख के उसको जो है चक्कर आने लगे. और उसने कहा कि देखो है ना, तुम ठीक रहो, तुमको कुछ नहीं होना चाहिए. हाँ, डोंट फेंट. डोंट फेंट का मतलब जो है तुम चक्कर वगैरह मत आने दो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज जो है मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा. और अभी जो है मैंने इसका जख्म रीओपन किया है ना, अभी इसको मुझे ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ही विल डाई. सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ. उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ अपने मुंह के ऊपर रख दिए. एंड लिप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम. और दौड़ी वहां से, जंप किया जैसे उसने. लिप का मतलब जंप होता है. और वहां से दौड़ के वो बाहर निकल गई. आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग. रेचिंग का मतलब होता है वोमिटिंग. रेचिंग का मतलब होता है वोमिट करना. समझते हैं ना, वोमिट, उल्टी करना. तो दौड़ी वो बेचारी है ना, बाहर जाकर दौड़कर गार्डन में गई. और सदाव ने सुना कि वो रेचिंग कर रही है, मतलब उल्टी कर रही है. बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क. उसने महसूस कर लिया कि है ना अभी ठीक होगी, है ना, तो वो अपने काम के साथ आगे बढ़ा. वो बोलता है, इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक. ही थॉट. उसने ये भी सोच लिया कि अच्छा है, हैना का पेट जो है साफ हो जाता है तो ठीक है, पूरी उल्टी से पूरा अंदर का जो है वो बाहर निकल आएगा, तो बार बार उसको उल्टी नहीं होगी, बार बार उसको बुरा नहीं लगेगा. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. वो एकदम भूल गया था कि हैना उसके फील्ड की जरूर है. हैना जो है वो उसकी वाइफ जरूर जरूर है, लेकिन उसने जो है आज तक किसी ऑपरेशन को नहीं देखा. भला कोई वो घर में ऑपरेशन करता होगा. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ. लेकिन उसकी पूरी इच्छा थी, उसकी पूरी डिजायर थी कि वो अपने बिलवेड वाइफ के पास जाए, उसको संभाले, उसके पीठ के ऊपर हाथ घुमाए, उसको जो है उसके परेशानी से मुक्त करे. उल्टी कर रही हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो परेशानी है हैना की, और इसकी इनेबिलिटी, किसकी इनेबिलिटी, डॉक्टर सदाव की इनेबिलिटी, वो अपने वाइफ के पास जा नहीं पा रहा है ऑपरेशन छोड़कर. समझ रहे ना. इस वजह से उसको एकदम, वो एकदम इम्पेशेंट हुआ, एकदम सहनशीलता उसकी खत्म हो गई, और वो इरिटेबल हो गया, उसको गुस्सा आने लगा. विद दिस मैन, किस आदमी के साथ, उस आदमी के प्रति उसको एकदम से गुस्सा आया. हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ. नाइफ का मतलब समझते हैं ना, ये उसके जो सब औजार है, उसके सब पूरे जो है टूल्स है ऑपरेशन के, ऑपरेटिंग टूल्स है, उसको वो नाइफ बोल रहा है. और सचमुच में एक नाइफ भी है उसके हाथ में, है ना, वो गोली निकालने की कोशिश कर रहा है. ओके, सो in this way this part ends here, and we will see the next parts, okay, tomorrow and day after tomorrow, and we will try to finish the lesson also within 2 to 3 days, as this lesson is very much lengthy, you see. But believe me, you will not be slightly you see bored or anything else, as this lesson is very much wonderful, and it has great you see kind of moral in it. So thank you very much. We will
we will study the next part in the next period. Okay, thank you.